I hope you all are good. So today we are going to discuss about our next topic, the next cell organelle, that is lysosomes. लास्ट वीडियो में हमने वैक्यूल्स राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था. अब हम लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कवरी lysosomes. Lysosomes were discovered by Christine Rene D. Dubé in 1950s. And for this he got Nobel Prize in 1974. Other than lysosomes, he also discovered peroxisomes, but that is not in your syllabus. You will going to study that in your +1 class if you will take biology. So lysosomes is a organelle which is mainly present in animal cells, and it is present in all eukaryotic cells. So present in यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि विथ ट्रू न्यूक्लियस. आपको याद हो गया होगा. यूकैरियोटिक सेल्स मेनली इन एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स, मेनली इन ऑल एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट, lysosomes is a organelle with single membrane. Lysosomes, they are spherical in structure, very small size, sac or vesicle like, vesicles like. Now, the important thing is that they contain some special enzymes. They contain enzymes that are more than 60, and some special proteins near about 50. Lysosomes, they contain these special enzymes. These are known as hydrolytic enzymes or digestive enzymes. Hydrolytic enzyme and digestive enzymes, which are synthesized in rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं और वहाँ से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस की हेल्प से वेसिकल्स के थ्रू पैक्ड होके ये इन लाइसोसोम्स के पास पहुँचते हैं. सो दिस एंजाइम्स आर वेरी एसेंशियल. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अमीबा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ऐसे ही हमने एक्रोसोम पढ़ा था. स्पर्म सेल के ऊपर जो हेड पोर्शन होता है वहाँ पर एक्रोसोम होता है, जहाँ पर अगेन एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सो दैट दे कैन लाइसिस द एग सेल, वो एग सेल को ब्रेक डाउन कर सके. सो अब हम बात करते हैं स्पेशल नेम. दीज लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग्स. वाई दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स, इसके बारे में अभी हम इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे. वैसे आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा. सुइसाइडल बैग्स बिकॉज दे कैन किल देमसेल्व्स, दैट्स वाई. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर फंक्शंस. Lysosomes. So first, as they contain various enzymes, so they help
in protecting cell from pathogens, bacteria, viruses, fungi, etc. So they help in protecting cells from pathogen. Next function, they destroy old cells by eating them, by eating worn out tissues or cells. So they destroy all the cells and tissues and help in making new one. So ये वेस्ट को भी क्लीन कर रहे हैं और ओल्ड सेल को खा रहे हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोफैगी. फैगी मीन्स एंगल्फ करना. ऑटो सेल्फ. सो दे आर नोन एज ऑटोफैगी and they destroy all tissues. So because they can destroy their old tissues and cells and also remove the waste from the cells, so they are also known as scavengers. Scavengers यानी कि clean waste from the cell. So next is they provide energy for breakdown of stored food substances, as they have some important enzymes and those are known as digestive enzymes. So they help in providing energy and breakdown of large stored food materials or macromolecules. They help in intracellular digestion. आप अगेन नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं. अभी हम लिखेंगे दे आर नॉन एज सुइसाइडल बैग्स बिकॉज दे किल themselves during the condition of pathogen attack and starvation. So they are known as suicidal bags. So this was the important point. ये आंसर भी हो गया आपका. सो ये हमने डिस्कस किया लाइसोसोम्स के बारे में. आप यहाँ लिख सकते हैं दे हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स या एक्रोसोमल एंजाइम कम्स फ्रॉम लाइसोसोम्स. ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं. सो हमने अब तक सारी सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लिया है, बेसिक कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया है सेल के, जैसे मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर देन दिस द ऑर्गेनेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल, राइबोसोम्स एंड नाउ दिस इज लाइसोसोम्स. अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है. अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी नेक्स्ट असाइनमेंट में, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एक टॉपिक था जो मैंने कहा था, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी. तो ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, you can ask me in the comment box. Thank you.